Okay, let's start. चलो, are you guys back? चलो, चलो मेरे पास 1 बजे तक 1-10 तक टाइम है, जितना कर सकते कर लेंगे, फिर बचा तो क्लबिंग के साथ क्लब कर देंगे। ठीक है, हाँ। अब रोहिणी रवि का कर लेते हैं, ठीक है। रोहिणी रवि क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, यहाँ से प्री कंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करने का थोड़ा सा हटके का तरीका है, ठीक है। यस, चलो लेट्स ट्राई। Mrs. Rohini Ravi, a citizen of USA, she is an ROR in India during the financial year 24-25. She owns a house property at LA, USA, which is used as a residence. So it is her SO property. Okay. Acha, and if you have a property outside India, do we do the working in the same way? Yes, everything is same. We don't change anything. Okay. प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो भी हम वैसे ही चेक, वहाँ के भी म्यूनिसिपल टैक्सेस है, वहाँ का भी जो भी है सब कुछ है, हम उसको कंसिडर करते हैं, राइट। तो उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, उसमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इस घर की एनुअल वैल्यू इज $20,000. वैल्यू ऑफ 1 USD may be taken as 75. She took ownership and possession of a flat in Chennai on 1st April 24. तो चेन्नई में फ्लैट लिया on 1st April 24, which is also used for SO. तो चेन्नई में भी SO है और LA में USA में भी SO है. Can she have 2 houses as SO? Yes. The flat was used by her for 7 months only during the year ended 31st March 25. The municipal valuation is 3,84,000 and the fair rent is 4,20,000 per annum. She paid the following to Corporation of Chennai: property tax. तो property tax भी municipal tax माना जाता है, sewerage tax को भी municipal tax माना जाता है. She had also taken a loan from Standard Chartered in June 2022 for purchasing this flat, and the interest on the loan is as under. Period prior to 1st April 24, चेन्नई के लिए उसने लोन लिया है, and from 1st April 24 to 30th June 24, and 1st July to 31st March 25 तक. तो ये सारा लोन का डेटा दिया हुआ है, बराबर है. She had a house property in Bangalore which was sold in March 21. In respect of this house, she received arrears. ये ICI की favorite adjustment है. Unrealized rent recovered, arrears of rent. This is always taxable under income from HP and standard fixed 30% deduction मिलेगा. आपका खर्चा कम हो, ज़्यादा हो या ना भी हो, ठीक है. This amount has not been charged to tax earlier. Compute income from HP of Miss Rohini if she has exercised the option of shifting out of default regime. And would your answer change if she pays tax under the default regime under section 115 back? So दोनों तरीके से हमसे पूछा गया है, बराबर है. Yes. So here we go. Question number 5. अरे मैं नोटबुक ही ओपन कर रही हूँ बार बार. I तो had my lunch only. I was hungry. Breakfast मैंने नहीं किया था. So I was like, now the food was ready, so let me have lunch. तुम लोगों ने क्या खा लिया, क्या lunch के नहीं किया? So question 5. HP income for Rohini. तो she has 2 properties. लिख के लो. USA and Chennai. Are these both SO? Yes. Can she have 2 SO? Absolutely yes. 2 properties can be. Ma'am, what about Bangalore? Bangalore का घर तो है नहीं, she sold it. उससे सिर्फ arrears of rent आया तो वो ले लेंगे, बराबर है. तो फॉर्मेट आप बना दो. चलो, GAV, leave a line, less municipal taxes, NAV, less deductions under section 24. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है. ये मेन वर्किंग उसके लिए है. दोनों घर
ठीक है, दोनों घर, ओके ठीक है, लंच क्लास के बाद, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आज अर्ली लंच कर ही लिया। हाँ, दोनों एसओ है मैम। चेन्नई का घर 1 जुलाई को खरीदा है, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि वो एसओ ही है, तो एसओ में जैसे इतना फर्क नहीं पड़ता। अभी उसका ऑफकोर्स घर रेडी हुआ, परचेज किया 1 जुलाई को, तो उसके पहले का जो भी इंटरेस्ट होगा उसके पहले के ईयर, 1 जुलाई को घर रेडी हो गया तो 1 जुलाई के पहले का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन में नहीं आता, 1 जुलाई के पहले वाले ईयर में। तो 1 जुलाई कौन से ईयर में? हाँ, तो 1 जुलाई के पहले वाले जो ईयर है उसमें आता है, इसमें नहीं आता, ठीक है ना। हाँ, तो उसके पहले वाले ईयर मतलब उसके पहले वाले 31 मार्च तक प्री कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये एसओ है और ये एसओ है। अब जीएवी नील, एनएवी नील, म्यूनिसिपल टैक्सेस डैश, ये नील और ये नील आ जाएगा। अब डिडक्शन डैश डैश हो जाएगा, सही है। हाँ, अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ तो कुछ नहीं है, यूएसए वाले घर को कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक नोट बनेगा फॉर चेन्नई वाला घर, राइट। नाउ ये चेन्नई वाला घर कब रेडी हुआ? चेन्नई हाउस प्रॉपर्टी वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 24 में, राइट। सो दिस हाउस, द फ्लैट वॉज यूज बाय ओनली फॉर 7 months, दैट्स ओके, बट 1 जुलाई मैंने क्या चीटिंग कर, क्या हुआ? लंच के मैंने चीटिंग कर दी, ऐसा क्या बोल क्या रहे हो तुम लोग? 1 जुलाई 24 को घर खरीदा है, राइट। एंड बट लोन कब लिया? बट शी टुक, लोन वॉज टेकन ऑन, शी टुक अ लोन, एंड लोन तो पहले ही लिया बिकॉज पीरियड प्रायर टू 1 अप्रैल 24 भी है, सो लोन इज टेकन इवन बिफोर, क्योंकि उसके पहले भी है 1 अप्रैल 23 से बिफोर का इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो मतलब मैंने घर के कंस्ट्रक्शन होने से पहले ही लोन लिया है। सो इफ द हाउस इज रेडी ऑन दिस डेट, राइट, ओके, सो इफ द हाउस इज रेडी ऑन 1 जुलाई 24, तो ये जो पीवाई है हमारा, which starts from 1st April 24 and ends on 31st March 25. It starts on 1st April 24 and it ends on 31st March 25. इस साल में तो घर रेडी है, सो यहाँ प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है। दिस इज करंट ईयर, ओके। प्री कंस्ट्रक्शन कब होगा? ये इसके पहले वाला, सो 31st March 24 तक दे विल बी प्री कंस्ट्रक्शन। So whatever is there before 31st March, sorry, prior to 1st April 24 नहीं है, मेरे पास डेट अलग है, सॉरी, prior to 1st April 24 दिया उन्होंने। prior to 1st April 24 बोला है कि लोन टेकन, कैसे पता चला? इंटरेस्ट की जो डेट है, यहाँ देखो क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। इंटरेस्ट में क्या बोला है? इंटरेस्ट में आपने को एक चीज़ बोली है, ये प्रायर, ये देखो प्रायर टू 1st April 24, मतलब 1st April 24 से पहले भी क्या है? इंटरेस्ट है। 1st April 24 से पहले भी लोन लिया हुआ है और उस पर क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? यस। तो ये जो पीरियड है इसको प्रायर मत मानो, ईयर वाइज प्रायर होता है। ईयर, इस ईयर में घर रेडी है तो इस ईयर का प्रायर नहीं है, बिफोर 31st। सो प्रायर टू इंटरेस्ट देखो 1st April 24, यहाँ के पहले जो इंटरेस्ट है दैट इज 49,200, ये प्री कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ जो भी इंटरेस्ट है इस पीरियड का 50,800, ये 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च तक इस करंट ईयर, ये करंट ईयर में आएगा, प्लस 131,300। या आप ऐसे लॉजिकली करो, या आपको फॉर्मूला याद है क्या? हम प्री कंस्ट्रक्शन की पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? वी ऑलवेज राइट कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ। सो आपका घर आपने परचेज किया 1 जुलाई 24 को, उसके पहले का 31 मार्च 24, सो उसके पहले का 31 मार्च 24 तक प्री कंस्ट्रक्शन है और 1 अप्रैल 24 से प्री कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है,
ठीक है। तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखते हो तो ध्यान से आपको क्वेश्चन में यही देखना है बेटा, ये सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन होने वाला है और ये दोनों जो है ये करंट ईयर का इंटरेस्ट आएगा। सो ये जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है ये 131,300 प्लस 50,800 दैट कम्स टू 180,100। तो दोनों की टोटल है 180,100 और प्री कंस्ट्रक्शन 49,200 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। तो वो कितना आएगा 49,200 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, सो दैट इज़ 9840 प्लस 180,100, सो दैट कम्स टू 180,100, सो दैट कम्स टू 191। फॉर्मूला वाइज ज़्यादा इजी, आप फॉर्मूला वाइज करो। सो आप वैसे करो जो आपको इजी लगे कि फॉर्मूला क्या बोलता है, जिस साल डेट लिखने का कंस्ट्रक्शन के और उसके पहले का 31 मार्च, उसके पहले के 31 मार्च पे प्री कंस्ट्रक्शन रहेगा और अब से करंट ईयर रहेगा, बराबर है। सो आपका टोटल इंटरेस्ट आएगा 191,940। कैसे, ये एक अमाउंट करंट ईयर का, ये करंट ईयर का इंटरेस्ट और ये प्री, ये करंट है बेटा और ये प्री कंस्ट्रक्शन है और ये क्या है, ये प्री कंस्ट्रक्शन है। सो टोटल इंटरेस्ट इज 191,940। तो यहाँ पे जो आपकी नोटबुक में आएगा ये 191,940 आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा 191,940। ये 191,940 का आप जो मैंने वहाँ क्वेश्चन में लिखा है आप वहाँ यहाँ पे उसका वर्किंग कर दो। वैसे आपको अगर देखना है तो जो मैंने क्वेश्चन पे लिखी है वही वर्किंग है इसका, 191,940। यस और अभी हम बैंगलोर का अनरियलाइज रेंट ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बैंगलोर का अनरियलाइज रेंट ऐड करेंगे। हो गया फिर ये क्वेश्चन, रोहिणी रवि का भी क्वेश्चन हो गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, राइट। सो इनकम फ्रॉम HP, आइयो इनकम फ्रॉम HP, USA वाला घर नील, चेन्नई वाला घर 191, $191,940 करेक्ट है। और बैंगलोर ये आउट ऑफ बैक है, ऑफ कोर्स दिस इज आउट ऑफ बैक, तो यहीं पे लिख देते हैं इसे आउट ऑफ बैक एंड इफ यू ऑप्ट फॉर बैक तो ये नील हो जाएगा, बैक में भी ये भी नील हो जाएगा क्योंकि ऐसा पोर्शन का अलाउड नहीं है। और बैंगलोर का एरियाज ऑफ रेंट कितना है, बैंगलोर का एरिया 60 है, 60 माइनस 30%, 42 149,940। और बैक में यही है कि 24 भी एसओ के लिए नहीं मिलता, ये आपको पता है। सो रोहिणी रवि वाला क्वेश्चन हो गया क्या, आपको और क्या लग रहा है, और ऐसा कुछ क्वेश्चन लग रहा है जो आपको करना चाहिए। आपको ऐसा कुछ और क्वेश्चन लग रहा है कि आपने करना चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। बोलो, डन है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट में जस्ट AC एडजस्ट करते हैं। अब देखो, मिस्टर एक्स
owns one residential house property in Mumbai. The house is having two identical units. So दो units है. First unit of the house is SO, another unit is LO. So unit 1 is SO and unit 2 is LO. The rented unit was vacant for 2 months. The particulars of the house for the PY 24-25 given below. Standard rent, municipal valuation, fair rent, municipal tax, 15% of municipal valuation, light water charges, interest on borrowed capital, lease money, insurance charges, repairs. Compute the income of house property for Mr. X for AY 25-26 if he exercises the option of shifting out of income from house property for Mr. X for AY 25-26 if he exercises the option of shifting out of default tax regime provided under 115 back. तो facts note कर लेते हैं. Question number 6. So one house has 2 units. So unit 1 is SO and unit 2 is LO. So unit 1, हाँ ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो सिंपल ऐसे लिया, बट बाइफिकेशन करने के लिए आपको मतलब पता होना चाहिए, बस उसके लिए लिया. ये कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चन. बाकी भी इतने कोई अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चंस. इसका रेंट कितना है? इसका रेंट लिखो 8000 है ना. देखो मेरे पास ओल्ड बुक है तो एक बार जस्ट कंफर्म करो. और इट इज़ वेकेंट फॉर 2 months. बस हो गया. तो 50-50 है, आइडेंटिकल यूनिट्स है, 50% और ये 50%, तो एक घर के टुकड़े कर देंगे. यस, सिंपल सा ही क्वेश्चन है. HP में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो कैडबरी क्वेश्चन है, वो मैंने ले लिया है, तो आई थिंक ख़त्म ही हो जाएगा HP पूरा. तो सिर्फ क्लबिंग आपका बच जाएगा. हाँ, तो आपका सिर्फ क्लबिंग बच जाएगा. तो वो कहीं तो 1-8 घंटा कभी तो स्क्वीज इन करते उसको. आज मुझे लग रहा था ख़त्म हो जाएगा प्रैक्टिस बैच. ठीक है, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे. चलो, यूनिट 1 एंड यूनिट 2. ये SO, ये 50%, ये LO, ये 50%. GAV लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस. घर को स्प्लिट किया, डेटा को भी स्प्लिट करना पड़ेगा. सही है कि नहीं? GAV कैलकुलेशन. MCQ प्रैक्टिस कहाँ से करें? मॉडल पेपर्स से, ICI का मटेरियल यूज़ करने का, बस. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं. RTP, MTP, 8 मॉडल पेपर काफ़ी है. ठीक है. स्टेप 1. दीपिका, थैंक यू. तो सुबह से लेक्चर अटेंड कर रही है फिर? ठीक है, थैंक यू बेटा. चलो, अब स्टेप 1 बोलो. घर का स्टेप 1 क्या है? स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ एयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ एयर रेंट विच एवर इज हायर, सो दैट इज़ 190 सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, सो 162. तो अब स्टेप 1 ये जो है ये पूरे घर का है. देयरफॉर स्टेप 1 फॉर अपने को GAV किसका निकालना है? सिर्फ LO पोर्शन का. ये देखो SO पोर्शन का क्या सीन रहता है. देखो SO पोर्शन का क्या सीन है? GAV नील, म्यूनिसिपल टैक्सेस नील, ये नील. ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है. अब सिर्फ इंटरेस्ट है, वो भी इंटरेस्ट हमको दे दिया है. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना दिया है? 1500 पर मंथ. हाँ, सो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इज 1500 इंटू 12 महीने, सो टोटल इंटरेस्ट है 18,000. हाँ ना, 1500 इंटू 12 इज 18, करेक्ट. उसमें से SO के लिए 9,000, LO के लिए 9,000. बराबर है, 9,000 एंड 9,000. इज दैट ओके?
तो एसओ को तो मैं 9000 अलाउ कर दूंगी। अच्छा, यूनिट 1 के ऊपर एसओ लिखा है तो यूनिट 1 को सारे एसओ के लिमिट्स अप्लाई होंगे। यूनिट 2 के ऊपर एलओ लिखा है तो वो एलओ के जैसा ही होगा। बराबर बराबर, यस। तो ये आएगा -9000। अच्छा, कल मैंने एक जूम इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, सिद्धार्थ करके एक स्टूडेंट है, Jan 25 का पेपर, उसको 76 मार्क्स आए टैक्स में। एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूँ तो टैक्स का पेपर थोड़ा ट्रिकी था, चेकिंग थोड़ा टफ था। तो अगर AIR 1 की भी बात करें, उसको टैक्स में 80 मिले, तो इस बंदे को 76 मिले, तो अच्छा है ये स्कोर। तो उसके साथ मैंने एक 30 मिनट्स का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, आज मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा कि क्या 1.5 डे की स्ट्रैटेजी उसने अपनाई, क्या उसने 3 आवर्स को कैसे टैकल किया पेपर को, उसके बारे में वो वीडियो है। तो आज शाम को मैं वो अपलोड कर दूंगी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। तो कल मैंने उसके साथ वो जूम इंटरव्यू लिया था। तो अब इनकम फ्रॉम HP आ गया। अब एलओ पोर्शन देखते हैं। अब एलओ पोर्शन का स्टार्ट होगा विद GAV। तो GAV तो नोट 1 में आएगा। बराबर। अब स्टेप 1 ये पूरे घर का है, ये एंटायर हाउस का है। अब मुझे स्टेप 1 किसका निकालना पड़ेगा? ऑफ एलओ पोर्शन ऑफ 50%। सो 50% निकालना पड़ेगा। ओनली ऑफ यूनिट 1 चाहिए मुझे, पूरे घर का नहीं चाहिए। तो 162 का 50%। मुझे ये याद ही नहीं है। मुझे ना जनरली क्वेश्चन जैसे याद होते, अमाउंट्स याद होती है, ये वाला क्वेश्चन मुझे याद ही नहीं आ रहा है। स्टेप 2 एनुअल रेंट। अयो, तो आपका एनुअल रेंट कितना है? स्टेप 2 में आपका एनुअल रेंट कितना है? आपका एनुअल रेंट है 8000 इंटू 12, सो दैट्स 96,000 लेस अनरियलाइज रेंट कुछ नहीं है। वेकेंसी कितना वेकेंट है आपका? वेकेंसी लॉस कितना है? 2 महीने का वैकेंसी है, दैट इज 16,000। Therefore, step 2 is 80. Is step 3 applicable? हाँ, यूनिट 2 है। हाँ, यूनिट 2 ऑफ कोर्स। देन स्टेप 3 एप्लीकेबल है क्या? स्टेप 2 इज लेस, यस इट्स एप्लीकेबल। स्टेप 2 इज लेस देन स्टेप 1 एंड देर इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी। इज 96,000 लेस देन 81? नो। 96 में से अनरियलाइज रेंट करो तो भी 96 ही बचेगा, राइट। अब उसके बाद ये 80 बचा, तो ये क्या हुआ बता दो? 80 बचा, तो हाँ 96, क्या 96 81 से कम है? नहीं। 96 में से अनरियलाइज कुछ भी नहीं है, वो भी 96 ही आ रहा है, तो क्या वो 81 से कम है? नहीं। फिर क्या हुआ? वैकेंसी। सो यहाँ पे जो रीज़न है इट इज़ ओनली V, and when it is only V, then it is step 2। स्टेप 2 क्या है? 80,000। स्टेप 2 क्या है? 80,000। बराबर है। तो स्टेप 2 80 है। 80। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना है? म्यूनिसिपल टैक्स पेड इज 15% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। 15% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज 190, उसका 50% डेटा स्प्लिट करना पड़ेगा। चलो निकालो, ये तो होमवर्क क्वेश्चन है यार। 14 to 50। चलो चलो बता दो अभी। $37,025। So income from HP is 9,000 चलो अभी डन है। अभी डन। चलो तो अब करते हैं आखिरी इसका एक क्वेश्चन और फिर कैडबरी क्वेश्चन, तो हो जाएगा 1 बजे तक, तो हो ही जाएगा फिर। चलो क्या बात है।
अरविंद वाला सवाल, अरविंद वाला सवाल इधर ही सॉल्व करती हूँ, अरविंद वाला सवाल यहीं पे सॉल्व करती हूँ। अरविंद हैज़ टेकन अ लोन फॉर 5 lakhs फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 1 October 22. Interest was payable at 13%. The construction was completed on 30th June 23. No principal repayment has been done up to 31st March 25. Compute the interest allowable under section 24B. कैसे हुआ? ओ 24B इंटरेस्ट बताओ, दिखाती हूँ ना। क्वेश्चन में दिया है इट इज़ 1500 पर मंथ। क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट इज 1500 पर मंथ, सो 1500 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट 18,000 आता है। 18,000 पूरे घर का है तो 50-50 किया। एसओ के लिए 9,000, एलओ के लिए 9,000। यस समझा गया? ओहो यस, डिड यू अंडरस्टैंड? Are we done? बोलो बोलो, are we done? डन है क्या? अब हो गया क्या? यश को डाउट था ना? हाँ अब यहाँ देखो, अरविंद हैड टेकन अ लोन ऑफ 5 lakhs फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ ये देखो लोन कब लिया आपने, लोन कब लिया आपने? लोन लिया है 1 October 22 को, और आपका HP जो है वो रेडी हो गया है ऑन 30th June 23। ओके, सो आपने लोन लिया 1 October 22, फिर आपका HP जो है वो कंप्लीट कब हुआ है? 30th June 23 पे। सो ये कंप्लीट कब हुआ है? ऑन 30th June 23 में। सो इट गॉट कंप्लीटेड ऑन 30th June 23। बराबर है क्या? हाँ, तो मैंने लोन कंस्ट्रक्शन के पहले लिया है तो प्री कंस्ट्रक्शन के चांसेस है, लेकिन ये कब होता है पता है क्या आपको? पता है क्या प्री कंस्ट्रक्शन कहाँ ख़त्म होता है? इसके पहले वाले ईयर में, करेक्ट। तो इसका पहले वाला 31 मार्च जो है इट इज़ 31 March 23 होता है। तो अब देखो लोन लेने की डेट है 1 October 22। अब लोन रीपे कब हुआ? नहीं दिया, कोई रीपेमेंट नहीं किया, तो रीपेमेंट नहीं दिया है, रीपेमेंट नहीं दिया है तो डेट विल बी लेटर। 31 March 23 आएगा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाला, करेक्ट। सो आपका 1 October 22 से लेके 31 March 23 तक बेटा प्री कंस्ट्रक्शन है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, तो आपका 6 months का प्री कंस्ट्रक्शन है। तो आपका इंटरेस्ट कैसे आएगा? आपका प्रिंसिपल कितना है? 5 लाख, तो आपका 5 लाख पे बेटा 13% इंटरेस्ट है, 13% है फॉर 6 months। तो ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन आएगा डिवाइडेड बाय 32,500 है क्या? या 32,500 एंड देन करंट ईयर का आएगा वो अलग। देयरफॉर जो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट होता है डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 32,500 डिवाइडेड बाय 5 years। तो उसको हम डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, सो दैट कम्स टू 6,500। एंड फिर हमको करंट ईयर का आएगा क्योंकि अभी तक लोन चालू है, तो बेटा 5 लाख पे आपको 13% आ जाएगा विच इज 65,000। सो 6,500 प्लस 65,000 comes to 71,500। it comes to 71,500। तो ये कितना आता है? it comes to 71,500। यप, अब बचेगा सिर्फ कैडबरी क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चल कर ले कंप्लीट फिर कैडबरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। मुझे रात को अगर 1 आध घंटा पता नहीं जमेगा कि नहीं, जमा तो मैं मैसेज डाल दूंगी क्लबिंग के लिए,
बट क्योंकि कल मेरा मैराथन है ना, प्रथम सीरीज़ करना है कल, और आई थिंक कल कर देना चाहिए तो अच्छे से हो भी जाएगा। पूरा दिन आप करना मेरे साथ तो हो जाएगा आपका प्रथम सीरीज़ में। Are we ready? Mr. A and B constructed their house on a piece of land by them at New Delhi. The built-up area of each was 1000 square feet, ground floor and an equal area in the first floor. So A का एक घर है, B का एक घर है, दोनों ने 2 फ्लोर्स किए, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. A started construction on 1st April 23 and the house got completed on 31st March 24. B started the construction on 1st April 23 and the construction got completed on 30th June 24. A occupied the entire house on 1st April 24. So A का जो घर है उसने A ने पूरा घर ऑक्यूपाई कर दिया 1 अप्रैल से, तो वो पूरा उसके लिए ऐसा हो गया. B occupied the ground floor on 1st July and let out the first floor for a rent of 15,000. However, the tenant vacated the house on 31st December 24 और उसके आगे B occupied the entire house from Jan to 31st March. Following other information is given. जो फेयर रेंट वैल्यू दिया है वो ईच यूनिट का दिया, ईच यूनिट मतलब ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का अलग अलग दिया है, मतलब 1 लाख ईच है, तो 1 लाख ग्राउंड फ्लोर का, 1 लाख फर्स्ट फ्लोर का, ईच बोला गया है. म्यूनिसिपल वैल्यू भी ईच यूनिट का दिया है. म्यूनिसिपल टैक्सेस ए ने कितने पे किए, बी ने कितने पे किए. रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस ये तो हम कंसिडर ही नहीं करते, स्टैंडर्ड में आ जाता है. ए हैज़ अवेल्ड अ हाउसिंग लोन ऑफ 20 lakhs at 12% on 1st April 23. B has availed a housing loan on 12 lakhs at 10% per annum on 1st July 23. No repayment was made by either of them till 31st March 24. Compute the income of house property for the previous year 24-25. एक सेकेंड में लिखते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं पहले. ए का करते हैं, ए के फैक्ट्स लिखते हैं, ए का कर देते हैं. क्या बात है. क्वेश्चन नंबर 1 अभी पता है कैसे हो गया, मैं कैडबरी क्वेश्चन से स्टार्ट करती ना, उसी को ज़्यादा टाइम लगता. तो लाइफ में भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, रिवीजन करना चाह रहे हो, पहले वो करो जो छोटा छोटा ख़त्म हो जाता है, फिर लगता है चलो बस अभी एक ही कैडबरी क्वेश्चन है अब हो जाएगा. तो आप अगर रिवीजन स्टार्ट करते वक्त 1 day बिफोर का कैपिटल गेन से स्टार्ट करोगे तो वही करते रहोगे, फिर आपको लगेगा हाय पूरा इनकम टैक्स बचा है, हाय पूरा GST बचा है, अब क्या करूँ. तो आप पहले GST कर दो, 5-6 घंटे में ख़त्म कर दो उसको. फिर अब मैं किधर हूँ, हाँ अब मैं क्वेश्चन 1 कैडबरी क्वेश्चन पे. 1 मिनट, डेट्स पे मुझे ज़रा ध्यान दे के बताना. यहाँ पे ओल्ड मेरे पास है ना. चलो फैक्ट्स, पहले मैं ए के फैक्ट्स करती हूँ. ए के लिए 1 हाउस प्रॉपर्टी, बस ऐसो है, मुझे ए के केस में फ़र्क ही नहीं पड़ता, फर्स्ट फ्लोर अलग है और ग्राउंड फ्लोर अलग है. मेरे पास 2 फ्लोर का घर है और मुझे दोनों का दोनों ही ऐसो के लिए यूज़ करना है, सिंपल सी बात. अब मैंने कंस्ट्रक्शन, मैंने लोन कब लिया, मैं यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन दिखा देती हूँ. सो सिंपल है, इसके लिए एक ही घर है, एसओ है. दूसरा मैंने जो लोन है, ए ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस, बी ऑक्यूपाइड हाउएवर टेनेंट वेकेटेड द एंटायर हाउस. A started the construction on 1st April 22. It completed on 31st March. तो मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो 31st March 23 को कंप्लीट हुआ. तो ये मेरा घर कंप्लीशन की डेट है. हाँ 24 सॉरी, मुझे एक ईयर आगे जाना ना मेरे पास. जो B started the construction and completed. A occupied the entire house. हाँ, A has availed a loan on 1st April 23. सो ए ने जो लोन लिया है 1st April 23 को लोन लिया है. सो डेट ऑफ टेकिंग द लोन और इट इज़ द रीपेमेंट वाली डेट. तो रीपेमेंट वाली डेट तो कोई भी नहीं है. सो रीपेमेंट वाली डेट और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन होना उसके पहले वाला 31st मार्च. तो ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे. उसके पहले का मैं 31st March 23 ले लूँगी.
तो ये बहुत सब वियर्ड सा आ रहा है। 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 23 तक कोई प्री कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, सो देर इज़ नो प्री कंस्ट्रक्शन, सिर्फ प्री करंट ईयर का आएगा, नो प्री कंस्ट्रक्शन, पीरियड ही नहीं है। बहुत वियर्ड सा आ रहा है, यू कांट हैव अ पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टू मार्च 23, नो। सो ए के केस में बहुत सिंपल सा फंडा है, उसके लिए पूरा घर एसओ है, उस पूरे घर का जीएवी नील है, उसका म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड है तो भी अलाउड नहीं होगा कि पूरा घर उसका एसओ है। अब 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नहीं है, अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल उसने कितना लोन लिया है, 20 लाख का, सो इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs। सो ए का आंसर है 2 lakhs। हाँ ठीक है, सो दे 240 है बट आई विल रेस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs। इज दैट ओके? इज दैट ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ए के लिए पूरा घर एसओ है, कोई प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है, आपने घर रेडी हुआ उसके पहले के 31 मार्च तक प्री कंस्ट्रक्शन होता है, जो कि यहाँ नहीं आ रहा है कुछ भी। अब मैं करती हूँ बी वाला पार्ट। अब बी के केस में उसने एक घर लिया, अब जो है ग्राउंड फ्लोर है उसने एसओ किया, फर्स्ट फ्लोर जो है उसने रेंट पे दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, टेनेंट ने जो घर है, अगर आप पढ़ते हो ध्यान से, बी ऑक्यूपाइड द एंटायर, टेनेंट वेकेटेड द हाउस ऑन 31 दिसंबर। सो यहाँ पे मैंने रेंट पे दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो बी के केस में बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बी का जो घर है, ओके, बी started the construction and completed it on 30th June. तो it got over in the middle of the year. एक सेकेंड ना, जस्ट एक सेकेंड। बी का जो घर है उसका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, 30th जून 24। एक तो आपका मिडिल ऑफ द ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। सो ड्यूरिंग द ईयर यू वर नॉट हैविंग अ हाउस फॉर अप्रैल, मई एंड जून। सो बी के केस में बहुत से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। पहला तो उसने घर को स्प्लिट किया, ये घर उसका रेडी कब हुआ, ये घर उसका रेडी हुआ 30th जून 24 को। अरे हाँ ना। अब इसके केस में क्या हुआ, जैसे ही घर रेडी हो गया जुलाई उसने रेंट पे दिया, जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, बराबर है। यस, तो ये कितने महीने हो गए, जुलाई से 31 दिसंबर तक। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स। और फिर ये इतने पीरियड के लिए ये एलओ था, राइट। सो ये रेंट पे दिया गया था, एलओ था ये इतने पीरियड के लिए, फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर को क्या हुआ, फर्स्ट फ्लोर को जैन, फेब एंड मार्च 3 मंथ्स के लिए आपने क्या किया, एसओ किया। सो इट वाज एलओ फॉर सम डेज एंड एसओ फॉर सम डेज। सो आपको फर्स्ट फ्लोर को यू हैव टू ट्रीट इट लाइक एलओ एंड मेन यू ओन दिस हाउस फॉर 9 months. You did not own the house for April, you did not own the house for May, and you did not own it for June because it got ready on 30th June. So you became the owner from 1st of July. अब अगले साल अगर बी ने फर्स्ट फ्लोर भी रेंट पे नहीं दिया तो उसका फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों का पर्पस एसओ हो जाएगा। तो अगले साल से हम शायद एक ही कॉलम बनाएंगे, बट इस साल क्योंकि पर्पस अलग है तो हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो आप जब इसका जीएवी कैलकुलेट करोगे, व्हेन यू ओन द हाउस इन द मिडिल ऑफ द ईयर,
We can't calculate the GAV for 12 months. So everything has to be done for 9 months over here. Is that clear? So everything over here has to be done for 9 months. Okay. Then comes pre-construction. B ने लोन कब लिया? B availed a housing loan of 12 lakhs at 10% on 1st July. So he took the loan on 1st July 23. बेटा रीपेमेंट हमको नहीं दिया है. सो जो रीपेमेंट है वो, या घर कंप्लीट कब हुआ? 30 जून 24 को. उसके पहले वाला मार्च इज 31 मार्च 24. सो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर. सो वी हैव अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हियर from 1st July 23 to 31st March 24. So that's July, August, September, October, November, December, Jan, Feb and March. So that is 9 months. So बेटा उसका जो लोन है वो 10 lakhs का लोन है बेटा. उसने जो इंटरेस्ट लिया है इट इज़ एट 10%. ओ 12 है, 12 lakhs का लोन है at 10% for 9 months. So 120 divided by 12, 90,000. Correct ना? हाँ. So 90,000 is pre-construction interest. अब हम अलाउ कितना करेंगे? पूरे घर की बात हो रही है, लोन तो पूरे घर के लिए. सो अलाउएबल इज 90,000 डिवाइडेड बाय 5, 18,000. Okay, divided by 5 and how much is that? 18,000. Are you getting it now? Bolo, are you getting it or are you not getting it? So allowable is 90,000 divided by 5, which is equal to 18,000. Is that okay to everybody? Yes. एंड करंट ईयर अभी भी लोन चालू है. सो 12 लाख पे 10%, 120. सो टोटल इंटरेस्ट प्री प्लस करंट मिला के 138 है फॉर बी, फॉर एंटायर हाउस. बट बी के घर के टुकड़े हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. सो इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय हाफ करेंगे. सो 69,000 फॉर द ग्राउंड फ्लोर एंड 69,000 फॉर द फर्स्ट फ्लोर. रिमेंबर, ग्राउंड फ्लोर इज SO, फर्स्ट फ्लोर इज गोइंग टू बी ट्रीटेड लाइक LO because 6 months it is LO and 3 months it is SO. अब जब मैं B का वर्किंग करती हूँ, सारे बच्चे पॉज करेंगे. सब कुछ हो गया, सिर्फ GAV कैलकुलेशन बचा है. ये B के केस के लिए यूनिट 1 मतलब मैं ग्राउंड फ्लोर बोल सकती हूँ 50% बेटा, ये SO है. मैं यूनिट 2 बोल सकती हूँ जो कि फर्स्ट फ्लोर है, ये 50% है, ये LO है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे बोलनी है, यू आर ओनिंग दिस हाउस ओनली फॉर 9 months. आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस हाउस फॉर 12 months. आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस ओनली फॉर 9 months. सो जब मैं अब इसकी GAV कैलकुलेट करूँगी, ये तो नील है, म्यूनिसिपल टैक्सेस डैश है, इंटरेस्ट यहाँ पे 69,000, नेगेटिव 69,000 आया ना. इधर मैंने लिया था ना ये 69. अब ये GAV थोड़ा सा ट्रिकी है, अब पॉज करके सुन के लेना. अब जो मैं GAV कैलकुलेट करूँगी, मैं फर्स्ट फ्लोर का करूँगी बेटा, विच इज़ 50% एंड इट इज़ LO पोर्शन. अब मैं निकालूंगी स्टेप 1. अब जब मैं स्टेप 1 निकालूंगी, वो निकालूंगी फॉर यूनिट. अब जो स्टेप 1 दिया है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, वो फ्लोर वाइज दिया है. सो 1 लाख
एक सेकंड ना रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हेलो, अरे कल मैं ऑटो रिक्शा से गई, सच ए स्वीट ऑटो रिक्शा वाला इज, और आई फॉरगॉट माई स्पेक्स ओवर देयर, द ब्लैक वाले स्पेक्स हैं मेरे उधर ही रह गए। हाँ तो फिर उसका कॉल है, उसका कॉल ही नहीं लग रहा था सुबह से, तो ही इज गोइंग गिव मी दैट स्पेक्स बैक, हैव टू टेक इट। सो चलो ये तो कंप्लीट कराती हूँ, चलो पहले ये तो कंप्लीट कराती हूँ। क्लबिंग मैं अभी नहीं कराऊंगी तुरंत, शाम को अगर मुझे होगा तो बताती हूँ। नहीं उसका फ़ोन ही लग रहा था, और रिक्शा वाला क्या भारी है, मैंने उसको लकीली जीपे किया तो मेरा नंबर नहीं ढूंढा, उसने जीपे से मेरा नाम ढूंढा, नाम से उसने गूगल यूज़ किया, गूगल पे ढूंढा, फिर उसको मेरे लेक्चर्स से पता चला, फिर उसको एक ना फ्रेंचाइजी है हमारी नागपुर में, उसका नंबर मिला। अब वो मिला, उसके बाद वो फ्रेंचाइजी वाले ने एसपीसी ऑफिस में फ़ोन किया, एक किसी स्टाफ को, एसपीसी स्टाफ ने मुझे फ़ोन किया, एंड आई एम लाइक ओ गॉड, वो रिक्शा वाले ने डायरेक्टली जीपे से, फ़ोन नंबर तो पता चलता है ना। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी भला करे भगवान उस रिक्शा वाले का। स्टेप 1 सुनो, स्टेप 1 फॉर यूनिट 2 दिया हुआ है। अब स्टेप 1 फॉर यूनिट 2, यस बहुत मेहनत की, इसलिए उनका फ़ोन आया तो मैंने तुरंत उठाया। तो नाउ ही सेइंग मैं स्वारगेट आ रहा हूँ, तो उनको लगा कि मैं प्रेस्टीज से रिक्शा ली थी मैंने कल, तो उनको लगा कि यार मैं उधर ही रहती हूँ। मैंने कहा आप जहाँ हो आप बोलो, मैं आती हूँ, मैं स्टाफ को भेजती हूँ। सो माई स्टाफ विल गो एंड आई विल गिव हिम सम यू नो ऐसा गिफ्ट या ऐसा कुछ, तो मनी फॉर्म में मैं उनको कुछ दे दूँगी, तो एक एज अ टोकन ऑफ थैंक यू नो। सो 12 महीने के लिए यूनिट 2 का अभी गाने चालू हो गए, अम्बेडकर जयंती है तो ओ गॉड। अब बता दो सॉन्ग्स, फेयर रेंटल वैल्यू, हाँ 1 लाख आ गई, बट ये जो 1 लाख है 12 महीने के लिए, तो 9 महीने के लिए 90,000 है, स्टेप 1। ठीक है, ये ऑलरेडी यूनिट 2 के दे दिया है, ईच है, यूनिट 2 का ही है। हाँ अब स्टेप 2 देखो क्या है, ये भी 9 मंथ्स के हिसाब से निकालना है। तो इट इज़ एसओ फॉर सम डेज एंड एलओ फॉर सम डेज, ट्रीटेड लाइक एलओ, बट जो एसओ पीरियड है उसको वैकेंसी नहीं मानना है। सो जो एनुअल रेंट है वो 6 महीने का ही आएगा। आपने 6 महीने के लिए क्या रेंट पे दिया है, 15,000। सो 6 मंथ्स इंटू 15,000, दैट्स 90,000, लेस अनरियलाइज है क्या, लेस वैकेंसी, therefore step 2 90,000। ऐसे कैसे आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, सेम नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है। उनके बच्चों के लिए टैक्सी क्लास फ्री, हाँ ले लूँगी ना, अगर है तो ऐसे, हम नीडित को कोई होता है तो हम लेते हैं। ये सेम नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है क्या। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर एंड विच एवर इज हायर, वो तो 1 लाख ही है। 9 मंथ्स का 75 है, मैं वही बोलूँ, मैंने क्या गलती कर दी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट,
9 मंथ्स का 75,000 है. सो स्टेप 3 NA, therefore final GAV. Step 1 or step 2, whichever is higher, so that's 90. So 90. म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय B 8,000, बट उसका 50% लेंगे. फिर से 2 मार्क्स कट. हर्षित आज मेरे मार्क्स कट करने पे उसका आज फुल फोकस मेरे मार्क्स के ऊपर है. क्या रे 86 का 30, 24, 25 200 क्या ये भी सही है कि नहीं? नहीं तो फिर से मार्क्स कट करेगा हर्षित मेरे. 25 800 देख कर दी मैंने, पहले करेक्ट कर दिया. और ये 69. अब इसमें क्या डाउट है पूछ लो. सो देन आई एम डन. हाँ GAV बता देती हूँ. ठीक है बता देती हूँ. तो देख पहले कैसे करना है. GAV अगर पूरे घर का होता तो आधा आधा करते, यूनिट 1 यूनिट 2. तो देखो देते वक्त ही यूनिट 2 के हिसाब से दिया. क्वेश्चन ने क्या बोला है GAV ईच का है, तो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर. तो तेरे को आया 1 लाख. तो 1 लाख ये यूनिट 2 का है. ये जो 1 लाख है ये 12 महीने के लिए. 1 लाख है कितने के लिए? 12 महीने के लिए. बट एम आई द ओनर ऑफ फॉर द हाउस ऑफ 12 महीने? नो नो नो, आई एम द ओनर ओनली फ्रॉम 30 जून से लेके 31 मार्च तक. तो मैंने मिडिल ऑफ द ईयर में जब घर खरीदा. अब तक कैसे होते घर ना सारे आई एम द ओनर फॉर द फुल ईयर. करेक्ट, आई एम द ओनर ऑफ द हाउस फॉर द फुल ईयर. तो वैसा नहीं है यहाँ पे. आई एम ओनर ऑफ द हाउस फॉर ओनली 9 मंथ्स. तो 12 महीने के लिए 1 लाख, तो 9 महीने के लिए कितना? सो दैट कम्स टू 75,000. अब स्टेप 2 9 मंथ्स का ही निकालना है. तो 6 महीने के लिए रेंट पे है और 3 महीने के लिए एसओ है. एसओ पीरियड को हम वैकेंसी नहीं मानते. तो ये जो स्टेप 2 है दैट कम्स टू 90,000. करेक्ट. सो स्टेप 3 नॉट एप्लीकेबल. सो फाइनल GAV इज स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर. सो व्हाट इज दैट? दैट इज स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हायर. समझ में आया क्या? यस. तो बता दो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? So is anybody having any problem over here? So is anybody having any problem over here? Yes, बता दे तेरे को कोई क्वेरी है क्या अभी यहाँ पे? So I think we are done. So HP is also done. अभी डन. किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलो. तो आई थिंक HP काफ़ी अच्छे से हो गया. नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा. ये नेगेटिव आ रहा है. 8,800 नेगेटिव है. ये नेगेटिव है क्या? क्या रे हर्षित तूने कैसे मेरे को करेक्ट नहीं किया? नेगेटिव है बच्चे बोल रहे कि नहीं. या फिर क्या रे तुम लोग? कौन है रे? ये कौन है रे? किसने मुझे करेक्ट नहीं किया? हर्षित के 2 मार्क्स कट करेंगे. अभी स्क्रीनशॉट क्यों लेना? उमंग सॉल्व नहीं किया क्या तूने मेरे साथ? चुप बैठ. मैंने बोला था कुछ भी नहीं बोला था. तेरे 2 मार्क्स काटूंगी अभी. 77 800. उमंग को स्क्रीनशॉट कैसे लूंगी? तेरे को किस चीज़ का? बहुत बड़ा क्वेश्चन है. कैसा स्क्रीनशॉट लेगा तू? क्या क्या दिखाओ तेरे को स्क्रीन पे? ये देखिए B का.
नहीं बाबा, नहीं काटूंगी, डोंट वरी, तुझे बहुत सारे मार्क्स दे दूंगी हर्षित, चिंता मत कर, ठीक है। आर वी ऑल डन? चलो, सो थैंक यू सो मच। दिख गया दिख गया दिख गया हर्षित, डोंट वरी। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सी यू सून। अगर क्लबिंग का ही अभी पार्ट बचा है, वो भी मुझे नहीं लगता 1-1.5 घंटे के ऊपर कुछ मुझे लगेगा, तो क्लबिंग वाला पार्ट में अगर आज टाइम हुआ तो आज लूँगी, लेकिन आज अगर टाइम मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस बैच कल का जो प्रथम सीरीज़ है उसके लिए प्रॉब्लम ढूंढने हैं, मस्त वाले प्रॉब्लम्स निकालने हैं, कुछ मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, तो उसकी फ़ाइल बना के लेनी है, आपके साथ शेयर करनी है, तो ये बहुत सारा काम है मुझे, तो ये सब मैं अभी करूँगी। और इसके लिए मैं फ़िलहाल आपसे अभी लेक्चर स्टॉप करती हूँ, और क्लबिंग का सेशन अगर कल नहीं परसों फिर ले लूँगी, मतलब प्रैक्टिस बैच का भी वो लास्ट सेशन होगा। आई थिंक किसी ने मुझे 80 GG सम गर्ल हैड आस्क्ड मी फॉर 80 CCH, तो बेटा 80 CCH पे अलग से सवाल लिए नहीं है कभी भी ICAI ने, बट मैं ऐसे ड्राफ्ट करके दे दूँगी। इट इज सेम लाइक 80 CCD, जैसे CCD होता है वैसे CCH है, एम्प्लॉई का कॉन्ट्री और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री, दोनों का आपको डिडक्शन मिलता है ऐड करके। तो बस अगर तुझे लगा तो फिर भी मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में जब क्लबिंग करा रही हूँ तब बता देना, मैं करा दूंगी, याद दिलाना सिर्फ एक बार, ठीक है। यस, सो थैंक यू सो मच। हाँ, प्रथम सीरीज में कंबाइंड क्वेश्चन होगा, यस यस यस, थैंक यू, सो सी यू, बाय बाय, नाउ गो हैव योर लंच, तुम लोगों ने लंच नहीं किया, ठीक है, बाय।